Morning students. Okay, in the last class we have completed a topic, that is process of entrepreneurship, in which we have studied what are the different steps uh, in sequence before starting an enterprises. Okay, so there are various steps for starting an enterprises. First one is self discovery. Okay, self discovery. Second one is identifying opportunities. What are the different opportunities is present in front of the any entrepreneur? So first of all they have to identify. Next one is generating and evaluating ideas. Next one, planning, raising startup capital, startup growth and harvest. Okay, these all are the process of entrepreneurship, which we have already studied in the last class, and we have also started a topic, that is Startup India scheme. Okay, so Startup India is an initiative of Government of India which was announced in the 15 August 2015. Okay, so we have already studied what is the meaning of the startup and what are the different schemes and ways to fund startup by the Government of India. So first one is no inspection, registration, income tax exemption, capital gain tax, benefit in patent and intellectual property, and funding schemes for startup. And there are some list of the funding options for the startup to help raise capital. Okay, so in which we have already studied the self funding and crowdfunding as a funding option. Yes, okay. Next one is we have studied the get angel investment in your startup, and so today we are going to start a fourth funding options out of the 10, that is get venture capital for your business. Okay, so venture capital are professionally managed fund who invest in companies that have huge potential. Okay, so they usually invest in a business against equity and exit when there is an IPO or an acquisition. Okay, venture capitals are the professionally managed fund. Okay, so ventures capital क्या होते हैं, जो भी different कंपनीज होती हैं, इंटरप्राइजेस होते हैं, जो भी उसके कैपिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड होते हैं. वो सारे जो फंड होते हैं वो प्रॉपरली मैनेज किए होते हैं. हु इन्वेस्ट इन कंपनी, वो सारे क्या होते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट होते हैं दैट हैव ह्यूज पोटेंशियल. उनमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है टू इंक्रीज मोर एंड मोर capital as well as increase their profit also. They usually invest in a business against the equity. Okay, वो basically क्या है, equity के against क्या करते हैं, invest करते हैं and exit when there is an IPO और acquisition. Okay, वो exit तब करते हैं जब IPO और acquisition. So now the term here is IPO. What is IPO? IPO is initial public offering. Okay, initial public offering. Now see the meaning. IPO is a process by which a private company can go public by sale of its stock to the general public. Okay, इसमें basically क्या होता है कि initial public offering में process होता है जिसमें जो भी private companies हैं वो क्या करती हैं, वो general public के पास जाती हैं और अपने जो भी उनके डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, स्टॉक्स हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ ओनर्स फंड हो गए, तो वो क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज़ को, ट्रेजरी बिल, तो उनको क्या करती हैं कि बॉन्ड्स, ये क्या है, कंपनी उनको क्या करती हैं, जनरल पब्लिक को सोल्ड आउट करती. तो जब वो सारे सोल्ड आउट हो जाते हैं, इन दैट कंडीशन वो जो भी सारे प्रोफेशनल हैं
वो जो अपने अमाउंट है वहाँ से फिर वो एग्ज़िट कर लेते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ रेज मनी थ्रू bank loans. Normally, banks are the first place that entrepreneurs go when thinking about funding. Okay, so normally banks क्या होते हैं, banks वो first place होते हैं जहाँ पे कोई भी entrepreneur go thinking about funding. जब वो funding के about think करता है कि उसे funding कहाँ से मिलेगी, मीन्स अगर उसको investment करना है अपने बैंक में, सॉरी अपने enterprises में, अपने venture में, तो सबसे पहले फर्स्ट उसका नेम आता है बैंक्स का, कि बैंक्स के थ्रू वो क्या करेगा, फंड्स को ले लेगा एंड अल्टीमेटली ही विल इन्वेस्ट दैट अमाउंट ऑफ मनी इन एनी इंटरप्राइजेस. ओके, सो ऑलमोस्ट एवरी बैंक इन इंडिया ऑफर्स फाइनेंस थ्रू वेरियस प्रोग्राम. ओके, सो जो इंडिया के सारे बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं थ्रू वेरियस प्रोग्राम. बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू फंड्स प्रोवाइड करते हैं. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, लीडिंग इंडियन बैंक्स, दीज ऑल आर द इंडियन बैंक्स, SBI, State Bank of India, HDFC, ICI, these all are the private bank. HDFC, ICI and Axis Bank have more than 7 to 8 different options to offer collateral free business loans. Okay, so these all are the some banks, they provide the loan to the investors as well as the any entrepreneur for as well as they also offer 7 to 8 different options. उनके पास होते हैं कि collateral free मीन्स कोई भी सिक्योरिटी वो उसके अगेंस्ट नहीं लेते हैं और बिजनेस लोन उनको प्रोवाइड करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ गेट बिजनेस लोन NBFCs. ओके, सो दी NBFCs मीन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़. ओके, सो देयर इज़ एन ऑप्शन कि एक ये भी ऑप्शन होता है कि बैंक्स लोन कहाँ से ले सकते हैं. तो बैंक के पास बिज़नेस लोन कहाँ से ले सकते हैं जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर हैं. तो देयर इज़ एन ऑप्शन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs provide services to those who would not have access to conventional banking services. Okay, it is banking services. सो येस, तो नॉन NBFCs क्या करती हैं, उन सारे को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं फ़ंड की जिनके पास वो एक्सेस नहीं है कि वो नॉर्मल कन्वेंशनल जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज हैं, उन तक वो रीच आउट करें. इट इज़ द इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर फॉर दोज हुज रिक्वायरमेंट आर लिमिटेड एंड क्रेडिट रेटिंग्स नॉट फेवर्ड बाई बैंक. ओके, बेसिकली जो NBFCs होती हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ होती हैं, वो पॉपुलर इसलिए हो रही हैं कि उनकी जो हुज रिक्वायरमेंट आर लिमिटेड मीन्स उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या है, बहुत ही लिमिटेड है. एंड क्रेडिट बैंकिंग्स आर नॉट फेवर्ड बाई बैंक. और जो भी उनकी रेटिंग्स है कि उनको कितनी रेटिंग मिली है अच्छे काम करने पे या उनके काम प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं, दे आर ऑल आर नॉट फेवर्ड बाई बैंक. ओके, so for the any entrepreneur NBFC is one of the option for the getting the business loan also. So these all are these some of the funding option for the startup. First one is self funding, second one is crowdfunding, third is angel investment, fourth one is get venture capital for your business, next one is raise money through the bank loans, and sixth one is get business loan NBFCs. Okay, getting the business loan from the non-banking financial company. Okay, now the next one is government programs that offer startup capital. So government of India has launched 10,000 crore startup fund in the union budget to improve startup ecosystem in India. Further, the government has also launched the various schemes such as, okay, so government of India has launched the 10,000 crore startup fund. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड को लॉन्च किया है इन द यूनियन बजट. जो भी उनका बजट बनता है फाइनेंशियल ईयर में, उस बजट में उन्होंने 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड अलग से एक उसको विड्रॉ किया है, इसको शो किया है अपने बजट में फॉर दी स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया,
फर्दर द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च वेरियस स्कीम, और गवर्नमेंट ने और सारी स्कीम्स को भी लॉन्च किया है. ओके, यस. सो फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम. तो बैंक ऑफ ideas and innovation program in order to boost innovative product company. The first scheme which is governed by the central government is bank of ideas and innovation program in order to boost innovative product company. Basically क्या है कि कोई भी innovative product company है कि वो कुछ न्यू आइडियाज़ को लेकर आ रही हैं, ब्रिंग आइडियाज़, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यू आइडियाज़ को लेकर आ रहे हैं, तो उनको बूस्ट करने के लिए ये सारे बैंक्स हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ मुद्राज, प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड टू एक्सटेंड बेनिफिट्स टू ₹10 लाख स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस. ओके, ये जो बेनिफिट है ये किसका है? 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा फॉर दी स्मॉल एंड दी मीडियम इंटरप्राइजेस. दिस इज़ कॉल्ड दी मुद्राज. नेक्स्ट वन इज़ सिडबी. SIDBI is Small Industries Development Bank of India. It is also for the business loan to medium as well as micro जो small industries होती हैं उनके लिए, enterprises के लिए ये fund provide करता है. ओके, सो बेसिकली ये माइक्रो जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, उनको ये क्या करता है? SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लोन प्रोवाइड करता है. ओके, सो these all are the schemes of the central government. Okay, so these are the different sectors, that is micro, small, medium enterprises, and it is governed by the SIDBI, that is Small Industries Development Bank of India. Okay, so they can any individual want to start their micro units, small scale enterprises, they can go through the SIDBI and getting the loan for their business purpose. Next one is these schemes for the state government. Okay, so what is it? First one is Kerala State Self Entrepreneur Development Mission. These all are the some schemes of the government. Next one is Maharashtra Center for Entrepreneurship Development, and the third one is Rajasthan Startup Fest etc. Okay, सो अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके अलग अलग कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं फॉर दी स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम. स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए अलग 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 स्टेट के अलग अलग कुछ स्कीम्स होती हैं टू प्रोवाइडिंग दी बिजनेस लोन को प्रोवाइड करने के लिए. दीज स्कीम्स आर सेटअप टू बूस्ट अप स्मॉल बिजनेस इन इंडिया. ओके, ये जो सारी स्कीम्स होती हैं वो क्यों हैं? स्मॉल बिज़नेस की कोई शॉर्टर पीरियड के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, या जो उसका बिज़नेस है स्मॉल बिज़नेस है, उन सब के लिए क्या कर रहा है? कुछ स्टार्ट कर रहा है स्मॉल बिज़नेस के लिए बेसिकली, तो ये क्या करती हैं? उनको बूस्टअप करती हैं. रीड अबाउट इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान. इफ़ यू वांट टू नो मोर information about this, you can read the Startup India Action Plan, in which all the other information is available there. Okay, now the next topic is intellectual property rights and entrepreneurship. Yes, okay, intellectual property, that is IP system, can be critical in helping new ventures transform their innovation potential and creativity into market value and competitiveness. Intellectual property right allow innovative entrepreneurs to protect their inventions. It also give an edge over your competitor. Okay, so intellectual property basically क्या होता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है? न्यू आइडियाज़ को ब्रिंग करता है. मीन्स उसने कुछ न्यू आइडिया को ब्रिंग किया, इनोवेटिव आइडिया लेकर आया, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू उसको क्या है? एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा उसके इनोवेशन पे. मींस मैंने क्या है? एक वॉच बनाई. ओके, उस वॉच को बनाने के बाद मैंने उस पर क्या किया? उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है. मींस मेरी उस पर राइट है और कोई सेकेंड पर्सन उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है. मैंने इन्वेंशन किया, मैंने अपनी आइडियाज़ को यूज़ करके उसको प्रोड्यूस किया, उसको बनाया,
सो अनदर वन नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट वॉच, ओके। अगर वो वॉच करेगा, अगर वो उस वॉच को प्रोड्यूस करेगा, अगर वो करना चाहता है, इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, वो कुछ सम अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़ टू और शी हैज़ टू पे टू मी, वो मेरे को पे करेगा, उसको बोलते हैं रॉयल्टी, ओके। कि वो उस अमाउंट को पे करेगा, तब मैं क्या करूँगी, उसको परमिशन दूँगी, यस आप क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो, ओके। सो इट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सॉरी, intellectual property system can be critical in helping new ventures transform their innovation potential, okay। बेसिकली जो intellectual property है वो क्या करती है, जो भी न्यू वेंचर्स हैं, न्यू वेंचर्स मीन जो न्यू बिजनेस हैं, उनको क्या करती है, ट्रांसफॉर्म देयर इनोवेशन पोटेंशियल, कि वो अपने जो भी उनके इनोवेशन पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी है इनटू द मार्केट वैल्यू एंड कॉम्पिटिटिवनेस, वो उसको क्या करे, ट्रांसफॉर्म करे। मतलब इसमें भी क्या है, लोग एज अ इसको बिजनेस बना लिए हैं, मतलब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर कोई और उसको प्रोड्यूस करना चाहेगा तो उसको लार्ज अमाउंट में वो उसको क्या करेंगे, पे कर देंगे, तो उसकी भी वो लोग क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू को पे करते हैं, ओके। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अलाउ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशन। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या करती है कि जो भी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हैं, जो न्यू आइडियाज़ को ब्रिंग कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशन, जो भी उन्होंने इन्वेंट किया है उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट ऑल्सो गिव एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर, मीन्स एक कॉम्पिटिटर को भी एक देता है कि हम क्या है, वो कोई सेकेंड वन उसको यूज़ नहीं कर सकता है, आई एम द ओनली वन हु कैन यूज़ दैट प्रोडक्ट, इफ़ एनी वन वॉन्ट टू यूज़ दैट प्रोडक्ट ही और शी हैज़ टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी टू मी, दैट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी, ओके। So next is what is the IP system? IP system क्या होता है? So general definition of the IPR, that is intellectual property rights. Intellectual property right is divided into two categories. First one is industrial property, which includes inventions, trademark, industrial designs and geographical indications. Second one is copyright, which includes literary and artistic works, okay। Let's see, जो intellectual property होती है वो क्या होती है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। टू पार्ट्स क्या हैं उसके, टू पार्ट्स क्या हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड द कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का मीन्स है कि इसमें कुछ इन्वेंशंस जो हम कर रहे हैं, पेटेंट, आई विल एक्सप्लेन एवरी पॉइंट, ट्रेडमार्क्स होते हैं, और इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस कि एक पे हम लोग कुछ ट्रेड मार्क दे देते हैं, या इंडस्ट्रियल जो भी उसने डिज़ाइन किया है, या जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है, दीज ऑल आर दी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट क्या होता है, ये होता है आपके लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, कि कोई आर्टिस्टिक वर्क किया, मीन्स लिटरेरी मीन्स कि किसी की बुक हो गई, जैसे होता है ना, आप बुक में देखे होंगे उसमें होता है कॉपीराइट, आर्टिस्टिक वर्क किसी की पेंटिंग हो गई, इसमें क्या होता है, कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है। और कोई न्यू आइडियाज़ ब्रिंग किया है, उसमें क्या होता है, पेटेंट होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम लोग टू में डिवाइड करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है कि वो सारे इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड होते हैं, कि हमने कोई कमोडिटी को प्रोड्यूस किया, या हमने कोई न्यू आइडियाज़ को, न्यू डिज़ाइन को लेकर आए, तो ये क्या है, सारी इंडस्ट्रीज़ की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन इज कॉपीराइट, विच इज़ बेसिकली रिलेटेड टू दी कोई भी लिटरेरी वर्क हो गया या आर्टिस्टिक वर्क हो गया, मैंने कुछ पेंटिंग किया या मैंने कोई अपनी बुक पब्लिश की है, तो उस पर क्या होगा, कॉपी राइट होगा। उस पर हम ये नहीं बोलेंगे कि इस पर पेटेंट है, नहीं, उस पर कॉपी राइट है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट refers to the general term for the assignment of property right to see these assets, okay। so इसका क्या मतलब है, जनरल टर्म फॉर असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट ऑन दीज असेट, की हर एक असेट पे, जो भी असेट है उस पर क्या है, प्रॉपर्टी की राइट है, ओके। सो द IP सिस्टम एज एन असेट फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट इज IPR इज़ वेरी वेरी important and beneficial for innovative entrepreneur in the following way, okay। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है
एंड इट इज़ ऑल्सो द बेनिफिशियल फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। जो भी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हैं, जो न्यू आइडियाज़ को ब्रिंग करते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ वाई इट इज़ टू मच बेनिफिशियल फॉर द एंटरप्रेन्योर, ओनली बिकॉज ऑफ इनोवेटिव पोटेंशियल गेट मार्केट वैल्यू। ओके, कैसे कैसे कोई इनोवेटिव पोटेंशियल मार्केट वैल्यू हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्या हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने कोई नई आइडिया को ब्रिंग किया। मीन्स वॉच जो है वो नॉर्मल वॉच है, मैंने क्या कोई नया आइडिया लगाया कि आप जैसे आजकल रेडियम होता है, या आपकी बिना आप सेल के भी आप वॉच को चल सकते हैं। ये मैंने अपना नया आइडिया लेकर आया कि आपको अपने रिस्ट वॉच में सेल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी वो चलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं कहेंगे, ऐसी ही वो चलेगी। तो ये क्या है, ये मैंने अपना न्यू आइडिया लाया, मेरे से पहले आज तक किसी ने नहीं लेकर आया था। तो अब क्या है, अब अदर जो भी कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फास्ट ट्रैक हूँ, मैंने ये आइडिया लेकर आया, अब क्या है, कैशियो हो गई आपकी, या अदर जो भी कंपनी है, सोनाटा है, वो लोग क्या करेंगी, मुझसे आके कांटेक्ट करेंगी कि अरे आपने कैसे किया। तो अब मैं क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू लगाऊंगी, मैं अपने अकॉर्डिंग इसकी प्राइस को डिसाइड करूंगी कि नहीं, आप मेरे को इतना अमाउंट पेड करो, इन दैट केस ओनली आई विल शो एंड आई विल गिव माई ऑल दी अथॉरिटी टू यूज़ दैट प्रोडक्ट। ओके, कि आप बिना सेल लगाए हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, बैटरी लगाए आप यूज़ कर सकते हो। तो इट इज़ द बेसिक एग्जाम्पल कि ऐसे आप समझ सकते हो कि मैंने कुछ अपना आइडिया को ब्रिंग किया और इसकी अब मैं मार्केट वैल्यू लगाऊंगी कि अब सोनाटा से बोलूँगी मैं कि आप मुझे इतना पे करो, देन आई विल टोल्ड यू माई हिडन टैलेंट। मैं तब आपको हिडन टैलेंट बताऊँगी, ऐसे नहीं बताऊँगी। नेक्स्ट इज़ especially upcoming entrepreneur can make their name and place in market with the IPR। ओके, जो भी अपकमिंग एंटरप्रेन्योर है, मींस अभी कोई न्यू एंटरप्रेन्योर है जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो भी अपने नेम को वहाँ पे नेम फेम को जनरेट कर सकता है एंड प्लेस इन द मार्केट, और मार्केट में प्लेस भी कर सकता है विद द IPR। मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ वो अपने नेम को भी नेम फेम भी कर सकता है मार्केट में, और मार्केट में प्लेस भी बना सकता है। ओके, रिसर्च शोज़ मोर देन 25% पेटेंट आर टेकन बाय दी न्यू एंड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। रिसर्च जो होते हैं डिफरेंट वो ये शो करते हैं कि जो भी 25% पेटेंट हो रहे हैं वो बेसिकली किस पे हो रहे हैं, आर टेकन बाय द न्यू एंड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। जो भी न्यू और अपकमिंग एंटरप्रेन्योर हैं वही लोग क्या कर रही हैं, पेटेंट कर रहे हैं। ओके, IPR गिव द एंटरप्रेन्योर प्रॉपर्टी राइट ऑन द इंटेंजिबल असेट। ओके, IPR जो गिव्स एंटरप्रेन्योर प्रॉपर्टी राइट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉपर्टी राइट देता है बेसिकली इंटेंजिबल असेट। टू टाइप्स ऑफ असेट एज यू ऑलरेडी नो in your accountancy, that is tangible and intangible. Tangible asset are those asset which can be touched. Okay, intangible assets are like the services. So yes, IPR give an edge over your competitor and help you to become leader in your field. Okay, IPR क्या करता है, आपको एक कॉम्पिटिटर की तरह ही एक क्रिएट करेगा, एज वेल एज इट ऑल्सो हेल्प यू टू बिकम लीडर इन योर फील्ड, और आपको अपने ही फील्ड में क्या करेगा, लीडर बनने में हेल्प करेगा। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स कॉपीराइट्स, पेटेंट एंड द ट्रेडमार्क। ओके, we will include 3 of them. So first one is copyright. What is copyright? Copyright protection give the copyright holder the exclusive right to copy the work, modify it, distribute, perform and display the work publicly. Patent protect processes, method and inventions that are novel, non-obvious and useful. If granted, a patent give you a monopoly on selling and using, making or importing an inventions. The requirement for a patent are complex. Trademark is like a brand name. It is any word or symbol that represent a product to identify and distinguish it before products in the marketplace. Like example, Nike
It is a trademark of the Nike company. Trademark give you a legal protection that no one else can use this trademark. Okay, so it's so simple. That is, patent protect the processes, method, and inventions. Copyright. Copyright gives the copyright holder the